says find the area of region included between, क्या रीजन दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कर्व. कौन सा कर्व है भैया? Which is this curve? Can you identify the curve? Y is equal to x square. कल मैंने आपको रखो. हाँ, what is this curve? This is a parabola. और ये एक स्ट्रेट लाइन है. तो दिस पैराबोला इज x square is equal to 4by टाइप का कर्व. कैसा होता है जी? ऊपर, upward, है ना? And this curve will have its vertex at the origin. Correct? The vertex is at the origin. इस तरह से. So the curve is like this. Yep. ऐसा कर्व. ठीक है. लाइन है y is equal to 4x passing through the origin. Yeah, passing through the origin. Y is equal to mx टाइप का लाइन है. So it is passing through the origin. And अगर मुझे लाइन दिखानी पड़ी तो कैसे होगा ये? इस तरह से लाइन होगी. Yes or no? So what is the curve that I want? Find the area of the region included between this and this. मतलब which region we are interested in finding out? Please tell me. The one with the line and the curve. Yes. The one with the line and the curve. Correct. So yeah, common region जो है वो मुझे चाहिए. This is the curve. तो उसके लिए मुझे I know that this line is passing through the origin. तो what things I want to find out? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि I have to find out the, इसमें रीजन जो है उसके लिए मैंने कर्व तो ड्रॉ कर लिए. शुरुआत कहाँ से करनी है, आखिर कहाँ तक करना है, उसके लिए मुझे उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. I will solve their equation simultaneously. इनके इक्वेशंस मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. तो लेट अस सॉल्व देयर इक्वेशन साइमल्टेनियसली. कैसे करेंगे सॉल्व, बताइए. To find out the points of intersection, y is equal to x square and y is equal to 4x. I will solve them simultaneously. So this will become x square is equal to 4x. मतलब x square minus 4x is equal to 0. Taking x common, x minus 4 is equal to 0. This will give me x is equal to 0 or x is equal to 4. When I substitute this in any of this, तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखिए, x is equal to 0 अगर substitute करूँगा तो y is equal to क्या मिलेगा? 0. And x is equal to 4 substitute करेंगे तो ये आएगा 16. So there are two points of intersection. एक होगा 0,0 as expected and दूसरा है 4,16. Is this clear to you all? तो ये है 0,0 और ये है point 4,16. Whenever we want to find out the region of integration between the two curves, a parabola, a line, a circle, in that case I have to find out the points of intersection. Okay, that will give us a better idea, better picture. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब कौन सा रीजन चाहिए जी, मुझे जरा बताइएगा प्लीज गौर से देख के. आई वॉन्ट विच रीजन. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए गौर से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं. आई विल फाइंड आउट दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये जो लाइन है उस लाइन का जो the area below the line is this. Yes or no? This is the area below the line. Let me call this area as A1. A1 is the area from x is equal to 0 to x is equal to 4. Correct? Yes or no? I'll call this point as O, this point as A and this point as B. So this is area A1, and let me call this as area of triangle OAB. Can I say so? Correct? Right? And that is equal to, this dimension is 4, this dimension is 16. So can I say it is half into 4 into 16? 32. Correct? Right. दूसरा एरिया भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ या दिखाने जा रहा हूँ कि द एरिया बिटवीन बिलो दिस कर्व, उस एरिया को मैं इस तरह से दिखा दूंगा.
Is this clear? So what is area A2? A2 is the area of integration for the curve, for the parabola. Parabola का जो area है उसके लिए y dx going from x is equal to 0 to x is equal to 4. Can I say so? Can I say so? And our required area A is equal to A1 minus A2. Yes or no? That's it. तो अब मुझे बताइए कि ये कैसे एरिया कैलकुलेट किया जाएगा. What is A2 is equal to integration y. What is y for parabola G? Y for parabola is x square. So I'll call this as x square dx. Going from x is equal to 0 to x is equal to 4. जिसका आंसर आएगा x cube upon 3. Going from x is equal to 0 to x is equal to 4, and that answer would be A2 is equal to 64 upon 3. Any doubts? And therefore the required area is found out as A is equal to 32 minus 64 by 3. That is equal to, पता नहीं कितना होगा, 32, 64, 32 by 3 square units is the answer. Is this very clear to everybody? Hello? समझ में आ गया? डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर मुझे इनडायरेक्टली उसको फाइंड आउट करना पड़ा. ओके, यप. I'll go for question number 4. बिल्कुल इसी प्रकार का है, ये भी पैराबोला और लाइन है. सेम टाइम यू विल ऑल हेल्प मी टू फर्स्ट. हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू? फर्स्ट ये है पैराबोला. आइडेंटिफाई द कर्व एंड ट्राई टू स्केच द कर्व. व्हाट काइंड ऑफ कर्व दिस इज? एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड दिस इज अ लाइन. ठीक है, तो पहली चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे? द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल स्केच द पैराबोला. ठीक है, इज दैट ओके? ये पैराबोला. आगे बताइए, व्हाट इज द लाइन? y is equal to x. What kind of line is this? 45 degree. क्यों? Because y is equal to mx, m is equal to 1, m is equal to tan theta, and theta is equal to 45. कंफ्यूज हुएगा? इतने सारे इंटरप्रिटेशन सिर्फ y is equal to x देख के आपको आने चाहिए, या सब इंटरप्रिटेशन का एक ही मतलब ये कि लाइन इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल. ग्राफिकली उसको सोचोगे तो सारे इंटरप्रिटेशन उसके अंदर समा जाते हैं. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो चलिए इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे. दिस इज द लाइन. कौन सा रीजन चाहिए मुझे? रीजन बिटवीन दीज टू. रीजन बिटवीन दोनों के बीच में फंसा हुआ रीजन चाहिए मेरे, है ना? ये जो ऊपर का रीजन है वो है, तो उसके लिए मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब आपके दिमाग में आया जब आपने इसको ड्रॉ किया, प्लॉट नहीं किया, ड्रॉ किया, स्केच किया. हाँ, 0,0 तो एक है ही. दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू सॉल्व देयर इक्वेशन साइमल्टेनियसली. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है y cube is y square is equal to 4ax. This is y square is equal to 4ax and this is y is equal to x. Okay, तो मैं x के जगह पर y लिख दूं. साइमल्टेनियस मतलब इट कैन बी सब्स्टिट्यूशन आल्सो ना. तो मैं लिखूंगा y square is equal to 4a but x is equal to y ना, तो I'll transfer it. अभी यहाँ पर क्या होता है, y कैंसिल करने की बहुत इच्छा होती है अंदर से आपको. In the process you are losing one of the solutions. So I'll transfer it in here. This will become y square minus 4ay is equal to 0. Y common, y minus 4a is equal to 0. सुनना जाना तो. So this will become y is equal to 0 और y is equal to 4a. तो यहाँ पर मुझे दो points of intersection, इसलिए दो answers मिल गए. If I'll substitute y is equal to 0 in any of these equations, I'll get x is equal to 0
दैट इज द ओरिजिन, तो ये अपने को पहले से पता था। दूसरा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 4a सब्स्टिट्यूट करोगे तो x इज ऑल्सो इक्वल टू 4a आएगा एंड द पॉइंट इज 4a, 4a। इज दैट क्लियर? So this is the first point 0, 0 and the second point here is 4a, 4a. Is that okay? जो रीजन मुझे चाहिए, the point, the region I want to calculate here, कैसे होगा रे बाबा? यह, let me call this point as O, this point as A and this point as B. Correct? तो यह भी 4a, वह भी 4a, 4a, 4a. So what is the area of triangle OAB? Is equal to half into base into height. That is equal to half into 4a into 4a. That is equal to 8a square. Any doubts? Correct? Let me call this area as A2. Let me call this area as A2. Is that clear? ठीक है, अब मैं फाइंड आउट करूंगा कौन सा एरिया भैया। I'll find out the area, ये वाला। Any doubts? बताइए कैसे करेंगे ये वाला एरिया फाइंड आउट। Let me call this area as A1. A1 is equal to area between parabola and x-axis. मतलब कौन सा एरिया रे? नहीं, it is nothing but area y dx. This y is for parabola. Going from x is equal to 0 to x is equal to 4a. Is that okay? What is y for parabola रे? नहीं, y square is 4ax. तो ऊपर का जो हिस्सा है पैराबोला का, ऊपर का जो हिस्सा है पैराबोला का, मुझे उसको y लिखना पड़ेगा। तो ऊपर का हिस्सा बनेगा y is equal to plus 2 times root of ax. और नीचे का जो हिस्सा है उसके लिए क्या बनेगा, y is equal to -2 times root of ax, क्योंकि इसके ऊपर y पॉजिटिव, इसके नीचे y नेगेटिव, इसलिए। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इज दैट क्लियर? चलिए, तो मुझे ये वाला पार्ट लेके आगे बढ़ना है। 2 times root ax, तो क्या बन जाएगा बताइए यहाँ पे? दिस विल बिकम, बोलिए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to 4a 2 times root a into root x. root x बोले तो x raised to half dx. ये समझा ना रे? This 2 root a is a constant. 2 root a is a constant and x raised to half is x raised to 3 by 2 upon 3 by 2. मतलब ये बनेगा 2 by 3 x raised to 3 by 2. मोबाइल गिर गया? This is going from 0 to 4a. So that will be nothing but 4 upon 3 times root a. ये क्या होगा? a raised to 3 by 2 minus 0. समझे? Now that is nothing but 4 upon 3 times a raised to 3 by 2 मतलब a root a और ये root a, that is a square. Is this okay? Therefore what is the required area? Correct. Required area a is equal to a1 minus a2. a2 बराबर है क्या? ये हमने कैलकुलेट किया है a1 और ये ट्रायंगल का एरिया a2. सो द रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू a1 minus a2. यस और नो? हेलो, रख। सो दिस विल बिकम, व्हाट इज a1? a1 इज इक्वल टू 4 upon 3a square माइनस क्या आएगा? 8a square. 8a square. तो तेरी माइनस क्यों आ गया फिर? ये गड़बड़ है। प्लस है ना सर, प्लस करना है a1 प्लस a2 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? माइनस तो नहीं, यहाँ पे 4a इज द अपर लिमिट ना, मैंने सिर्फ a लिखा है। 4a raised to 3 by 2 है ना?
समझे क्या? अपर लिमिट इज 4 है, तो कुल मिलाकर क्या आएगा ये? दिस विल बिकम 4/3 रूट ए, और ये क्या आएगा? 4^3/2। 4^3/2 क्या होता है? 4½ इज 2 और 2 का क्यूब इज 8, समझे? एंड दिस इज a रूट a, 32/3 a square. This is 32/3 a square. 8/3 a square, square units. Is this clear to all? Any doubts about that? I'll switch over to the next question now. अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है. चलिए, what is that? Identify the curve. कौन सा कर्व है ये? This is line. और इस तरह का जब इक्वेशन होता है x² और y, तो वो पैराबोला होता है. कल मैंने आपको एक पैराबोला को रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाला था विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. तो यू शुड गेट यूज्ड टू डू दैट टेक्निक, एंड यहाँ पर भी वही टेक्निक करना है यूज. तो आप बताइए, हाउ डू आई पुट दिस इक्वेशन इन दैट फॉर्म? You refer any of the 4 standard parabolas, उसमें y² या x² अकेला होता है, एक साइड में होता है. तो यहाँ पर ये 3 जो है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे. तो क्या बनेगा ये बताइए? This will become x² is equal to y minus 3. That's it. This is very much comparable with x² is equal to 4by. Yes or no? इसके साथ कंपेरेबल है ये, राइट? करेक्ट. तो ये जो पैराबोला है वो स्टैंडर्ड पैराबोला है, विच इज ऑफ दिस टाइप. करेक्ट. इस टाइप का पैराबोला ये. इसका वर्टेक्स इज एट x is equal to 0 and y is equal to 0. लेकिन what is capital X is small x, and what is capital Y? Yeah, this is y minus 3. Correct? So y is equal to 3. So इसका जो वर्टेक्स आएगा वो कहाँ पर आएगा? 0,3 पर आएगा. Is that clear? इसका वर्टेक्स आएगा 0,3. तो मुझे वहां पर ये वाला प्रोसेसिंग है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग. 0,3 कहाँ पर होता है जी? ये रहा यहाँ. दिस इज 0,3. सही है. और जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आएगा. समझे? अब बारी है इस इक्वेशन की, y is equal to x plus 3. नाउ दिस इक्वेशन y is equal to x plus 3 कहाँ पर आएगा? ये y is equal to x plus 3 बताइए. Where is this going to be? y is equal to x plus 3 अगर लाइन की मैं बात करूं, this is line. This line for x coordinate, for x intercept, put y is equal to 0. So you will get it as x is equal to minus 3. That means this is minus 3,0. For y intercept, put x is equal to 0. So you will get y is equal to 3. So this is 0,3. मतलब ये लाइन भी यहीं से पास हो रहा है और यहाँ से पास हो रहा है. सही है? Isn't it? This is x intercept and y intercept I found out. So I can say something about this line now. इस लाइन के बारे में मैं कुछ तो बोल ही सकता हूँ अब. तो ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से होगी. Is that okay? इस तरह से ये लाइन है. Any doubts about this? ठीक है. So this line is passing through 0,3 and 0, minus एक मिनट 0 minus 3,0 क्या हो गया? बराबर है ये. This is minus 3,0 and 0,3. Is that clear to all? But I would like to know, क्योंकि मुझे ये वाला रीजन चाहिए, तो I would like to know what is this point of intersection of these two.
For that, I'll need to solve their equation simultaneously. So simultaneously, y LHS equate their RHS. So how do I find out the point of intersection? Point of intersection is found out by, बोलिए, x square plus 3 is equal to x plus 3. मतलब क्या होगा? x कॉमन लिया जाएगा, x minus 1 is equal to 0. सही है? That means they are intersecting at x is equal to 0 and x is equal to 1. तो यहाँ पर x is equal to 0 है और यहाँ पर x is equal to 1 है जी. समझे क्या जी? और y क्या होगा यहाँ पे? कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट कर लो. If I substitute y here, तो ये बन जाएगा y is equal to 3 and this is y is equal to 4. So as expected, what do we get there? This is 0,3 जो हमें ऑलरेडी पता था और दूसरा है 1,4 which is this. Is this okay? Any doubts about this? चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और अब आप मुझे बताइए व्हाट इज दैट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज क्लियरली दिस रीजन. करेक्ट, ये रीजन. लेकिन मैं उसको कैसे लिखना चाहूंगा? I mean, I would say that this region is A1. This is A1 and A2. This is A2. So what I would say here is required region A is equal to A1 minus A. रुकना, डाउट है? हाँ, कर सकते हैं ना, रुकना. A1 क्या है बताओ मेरे को पहले. A1 is the region below the line. रीजन बिलो द लाइन, बराबर है ना. A1 क्या है? रीजन बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस. करेक्ट है? हेलो. माइनस A2 is the region between parabola and x axis. Region, are you all understanding that? Between parabola and x axis. ठीक है. देखिए ये वाला रीजन में जो ग्रीन वाला मैंने दिखाया था ना अभी रीजन, यहाँ दिस आई कैन फाइंड आउट ज्योमेट्रिकली. बराबर है क्या? ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट कर सकता हूं. कैसे? देखिए ये है 3 ना, आप कैसे भी कर सकते हो. आई मीन दिस इज लाइक ट्रेपेजियम, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल. या तो फिर आप इसको, ये 3 है तो भाई ये कितना होगा? ये टोटल 4 है, बराबर है क्या? उसमें से ये 3 है तो ये 1 होगा. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? यू कैन डू इट लाइक दिस. हेलो, ठीक है. आप वैसे कर सकते हो. तो कैसे करना है आप बताइए. यप, ट्रेपेजियम क्या है, फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. करेक्ट. तो लेट मी गो फॉर दैट. यहां पर अच्छा, दूसरा इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं. इसे फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं. आप इसको ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं. ज्योमेट्री से कैसे होगा? ज्योमेट्री से ये हो गया ट्रेपेजियम. तो भी इसको अगर मुझे ट्रेपेजियम के हिसाब से करना है तो दिस इज 3 और ये 4 है. तो 4 को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर तो ये 1 होगा, सॉरी ये 3 होगा और ये 1 होगा. समझे क्या? सो ट्रेपेजियम का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, 3 + 4 इंटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट.
So this will be half into 3 plus 4 into 1 and that will be 7/2. लेकिन इसे करने का इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो आप लोग इसको, और ये तो आपको इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो लेट मी राइट डाउन नाउ दिस a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है. सो इट इज इंटीग्रेशन, इट इज द एरिया बिलो द कर्व एंड x एक्सिस which is given by y dx. correct? This is y dx going from x is equal to कहाँ से कहाँ तक? x is equal to 0 से लेकर x is equal to 1 तक. Are you understanding what I am saying there? Is that clear? So what I'll write here, this is x is equal to 0 to x is equal to 1, but this is y for the line, minus integration x is equal to 0 to x is equal to 1 y for the parabola. नहीं, पहला क्या होगा, ऊपर क्या है, लाइन, और नीचे है पैराबोला. इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो दिस इज y फॉर द पैराबोला. अब देखिए y फॉर लाइन और y फॉर इनटू dx ऑफ कोर्स. So I can write this as integration x is equal to 0 to 1. What is y for the line? We already know y for the line is x plus 3 and y for the parabola is x square plus 3. The limits are same, so can I put them under the same integral sign? Yes. So can I write this as y for line is y plus x plus 3. What is that? X plus 3. And y for parabola is x square plus 3. And that will give me dx. Is this okay? So this 3 gets cancelled. So what do you get there? Integration, अब x का integration आएगा x square upon 2 और x square का आएगा x cube upon 3. And the answer is going from 0 to 1. Lower limit में दोनों चले जाएंगे, x is equal to 0. So this will become half minus 1/3 and the answer would be like 1/6 square units. Is that easy? Is that understood? Any doubts about that? This is very clear to you all. समझ में आया सबको? So in this way we can find out the region. देखिए हर एक क्वेश्चन में हमें शुरुआत में यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ रहा है और जरूरत होती है यहाँ पर आपको पैराबोला के बारे में जानने की. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपको पैराबोला या सर्कल के बारे में जानने की जरूरत थी, इसके लिए मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था सर्कल और पैराबोला का. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. Yes, sir. Is that okay? I think we'll stop here today.